Students, today we will discuss one of the important topic of chapter classification of elements and periodicity, that is modern periodic law. This is, you can say, one of the basis for the modern periodic table. So before we study the modern periodic table, हमें इसको study करना बहुत ज़रूरी है. So what is the first we will see definition of modern periodic law. He says physical and chemical properties of elements are periodic function of atomic number. कि जो आपकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज हैं वो पीरियोडिक फंक्शन है एटॉमिक नंबर का. इसका मीनिंग क्या होता है? अगर हम एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर में अरेंज करें देन वी विल गेट सिमिलर प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट आफ्टर रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम. वी कैन आल्सो राइट इफ एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन इंक्रीजिंग order of atomic number, then the similar properties are repeated after regular interval in periodic table. सो जस्ट सी द एग्जाम्पल. पहले हम इसको समझते हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस. हाँ, हम स्टार्ट करते हैं लिथियम से. लिथियम एटॉमिक नंबर 3, देन बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, एंड आफ्टर दैट अगेन कम्स सोडियम एटॉमिक नंबर 11. देन सोडियम के बाद वी विल गेट बेटा मैग्नीशियम, देन एल्यूमिनियम, देन सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, chlorine, and here argon, and here I will get potassium atomic number 19. After potassium, calcium, then here gallium, germanium, arsenic, selenium, bromine, krypton, and here I will get rubidium. Clear to all of you? So यहाँ पर हमने थोड़ा एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर में अरेंज किया फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, और हम बेसिकली अब स्टडी करेंगे इस पार्ट में. यहाँ पर व्हाट वी विल गेट, लिथियम के बाद सोडियम, सोडियम के बाद पोटेशियम, एंड पोटेशियम के बाद व्हाट विल आई गेट, रुबिडियम. क्लियर टू ऑल ऑफ यू? सो ये हमने एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर में अरेंज किया है. सो व्हाट अकॉर्डिंग टू दिस मॉडर्न पीरियोडिक लॉ कि जो प्रॉपर्टीज लिथियम की होगी वही प्रॉपर्टी मुझे सोडियम में मिलेगी, सेम प्रॉपर्टी मुझे पोटेशियम में मिलेगी, सेम प्रॉपर्टी मुझको रुबिडियम में मिलेगी. क्लियर टू ऑल ऑफ यू? अब इसको हम स्टडी करते हैं कि ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी है जो हमें मिली है. सो व्हाट विल आई से, जस्ट सी आउट. हम किसी एक प्रॉपर्टी को स्टडी करेंगे, एनी वन प्रॉपर्टी वी विल स्टडी. द प्रॉपर्टी दैट वी विल स्टडी इज, इसको बेटा रब करते हैं पहले फर्स्ट, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है. दिस वी विल फिनिश. एंड एटॉमिक नंबर ऑफ रुबिडियम इज 37. सो इफ आई राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ दिस, द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ लिथियम इज 1s2 2s1. क्लियर टू ऑल ऑफ यू? सो अगर मैं इसकी नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन नोट करूं, that will be written as, lithium से पहले जो नोबल गैस आएगी that is helium. 1s2 stands for helium, so its configuration is helium 2s1. Then the configuration of sodium is neon 3s1. Configuration of potassium is argon 4s1. Rubidium will be krypton 5s1. ये हमारी नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, और यहीं से we are able to write outer electronic configuration, means configuration of outermost shell. ये हमने structure of atom में काफ़ी डिटेल में किया. So यहाँ पर जो outer electronic configuration of for lithium that is 2s1, sodium 3s1, potassium 4s1 and rubidium is 5s1. So यहाँ पे मुझे similarity क्या मिली? What similarity will I get? The similarities बिल्कुल clear है. Just see out. First हम देख के चलते हैं valence electrons. All of you know valence electrons जो होते हैं, these are the electrons of the outermost shell. So outermost shell में in all the cases there is one valence
electron. Clear to all of you? And second, they will have the similar outer electronic configuration, means in all of them all have one electron in s of outermost shell. So what happens, just see out, lithium के बाद lithium has one valence electron, then sodium को भी one valence electron मिला, lithium के outermost shell में one electron है, sodium की भी outermost shell में one electron है. Similar I'll get potassium, similar I'll get rubidium. So this is said to be the periodicity, means the properties these are repeated after the regular interval in the periodic table. So this again I'll define, physical and chemical properties of element are the periodic function of atomic number, or we can say if elements are arranged in increasing order of atomic number, then the similar properties are repeated after regular interval in the periodic table, and we have seen the example in case of that particular lithium, sodium, potassium and rubidium. Now we will see the experimental proof of this. Now what is the experimental proof of modern periodic law? So experimental proof now. Student, this modern periodic law, it was given by Henry Moseley. So what he has done, he has simply plotted a graph between atomic number and under root of frequency of X-rays. This is, you can say, root of, or you can say properly square root of frequency of X-rays. ये X-rays मिली कहाँ से? Just see out. He has strike the electron beam on the metals, and then from the metals X-rays are emitted, and these X-rays will have the frequency nu, और इसी frequency को plot किया against atomic number, clear, of these metals. Clear? So उन्होंने किया क्या? experimental proof, एक physical property, और physical property क्या थी? वो physical property थी frequency of X-rays. प्लॉट किया गया अगेंस्ट एटॉमिक नंबर, और काफ़ी एलिमेंट्स में उन्होंने स्टडी किया. नियर अबाउट अगर मैं बात करूं, सो ही हैज स्टडीड 38 एलिमेंट्स. 38 एलिमेंट्स में उन्होंने एक्सरे को प्रोड्यूस किया, उनकी फ्रीक्वेंसी को नोट किया अगेंस्ट देयर एटॉमिक नंबर, एंड दीज आर फ्रॉम एल्यूमिनियम टू गोल्ड. एल्यूमिनियम से गोल्ड के अंदर 38 एलिमेंट्स पे स्टडी किया. क्लियर? सो यहां पर व्हाट ही हैज गॉट, जस्ट सी आउट. अब इतना क्लियर है कि ये जो आपकी फ्रीक्वेंसी है, this is, I can say, the physical property of element, and Z all of you atomic number. So beta what he got a straight line curve, और यहां से क्लियर हुआ कि जो फ्रीक्वेंसी है that is directly proportional to atomic number, and since frequency is the physical property, so physical property directly proportional to atomic number, और we can say जो physical property वो किस पे डिपेंड करेगी? atomic number पे डिपेंड करेगी. that is the main part of modern periodic law. Now in the last we will see the theoretical justification of this, means इस चीज को हमें theoretically भी proof करना है. very easy to prove. theoretical justification of modern periodic law. So the theoretical justification is see out. जो एटॉमिक मास है, बेटा ध्यान दीजिएगा, एटॉमिक मास इज द न्यूक्लियर प्रॉपर्टी. न्यूक्लियर प्रॉपर्टी मीन्स सपोज दिस इज एन एटम एंड दिस इज अ न्यूक्लियस. सो जो एटॉमिक मास है वो बेसिकली आई विल राइट ड्यू टू द न्यूक्लियस. सो जो न्यूक्लियस होता है, बड़े ध्यान से करना है आपका, दिस न्यूक्लियस इज सिचुएटेड डीप इन द एटम और डीप इन एन एटम. ये एटम के डीप में सिचुएटेड होता है. सो व्हाट हैपन, जस्ट सी आउट, कोई भी अगर केमिकल या फिजिकल प्रॉपर्टी होगी, सो उसका एटॉमिक मास पे कोई भी इफेक्ट नहीं होने वाला है, क्योंकि वो एटम में डीप इनसाइड है. ध्यान कीजिएगा, आई विल राइट, सिंस द न्यूक्लियस इज सिचुएटेड डीप इन एन एटम, देयरफॉर देयर इज नो इफेक्ट ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टी एंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑन न्यूक्लियस. न्यूक्लियस पे कोई भी इफेक्ट नहीं होगा. उसका एक रीजन आप ये भी कह सकते हो, ये बेटा आपके एटम की सराउंडिंग है.
फिजिकल प्रॉपर्टी हो या केमिकल प्रॉपर्टी हो, वो सराउंडिंग में होती है। तो सराउंडिंग से जो आपका न्यूक्लियस है काफ़ी डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, सो जो एटॉमिक मास है वो यहाँ पे आपकी फिजिकल या केमिकल प्रॉपर्टी को रिस्पॉन्ड नहीं करेगा, क्योंकि बेसिकली वो न्यूक्लियर प्रॉपर्टी है और न्यूक्लियस एटम में डीप इनसाइड सिचुएटेड होता है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो आपकी प्रॉपर्टीज हैं वो एटॉमिक मास पे डिपेंड नहीं करती। बट अब मॉडर्न पीरियोडिक लॉ ने कहा कि दे डिपेंड ऑन द एटॉमिक नंबर, सो आई विल राइट एटॉमिक नंबर, it is a property that is attributed, or you can say due to, electrons in the extra nuclear part। जो आपकी एटॉमिक नंबर है वो प्रॉपर्टीज इलेक्ट्रॉन्स की वजह से हैं, जो इलेक्ट्रॉन यहां ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करते हैं, दीज इलेक्ट्रॉन्स। अब ये देखिए बेटा, ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इनमें और सराउंडिंग में, सपोज यहां पर इलेक्ट्रॉन है, सो इस इलेक्ट्रॉन और सराउंडिंग में डिस्टेंस कम होगा, तो ये इलेक्ट्रॉन बहुत जल्दी रिस्पॉन्ड करेगा किससे, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी से, एज कंपेयर टू द न्यूक्लियस। सो आई विल राइट, सिंस इलेक्ट्रॉन आर नॉट डीपली सिचुएटेड, सो दे रिस्पॉन्ड टू द physical property and chemical property. Hence we can say that physical and chemical properties, they depends on atomic number, not on atomic mass. So if anybody says कि भी theoretical justification, तो बिल्कुल क्लियर है, वन लाइन में इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। एटॉमिक मास न्यूक्लियर प्रॉपर्टी है, न्यूक्लियस काफी अंदर सिचुएटेड होता है, तो फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी का उस पर इफेक्ट नहीं होगा। एटॉमिक नंबर आपकी जो प्रॉपर्टी दैट इज ड्यू टू द इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन जो है वो डीपली सिचुएटेड नहीं होते, वो आउटर पार्ट में होते हैं, सो वहां पर फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी का बहुत ज्यादा इफेक्ट उनके ऊपर पड़ता है, देयरफॉर दे कैन रिस्पॉन्ड टू द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी। सो इन द लास्ट में एक बार फिर से डिफाइन करूंगा द मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। ही सेज physical and chemical properties are the periodic function of atomic number, not the atomic mass. Clear? And this was given by Henry Moseley. So this is all about the topic modern periodic law. That's all.